Good evening and welcome to this edition of Election Radar with me, Sanket Upadhyay. Today our show has reached Gorakhpur. It was a long journey which we started from the west part of Uttar Pradesh, from Greater Noida, Aligarh, Swar, Tanda, Saharanpur, Deoband, and then we went on and on covering phase 1, 2, 3, 4 and 5, and now for phase 6 right here in Gorakhpur. Why does this become important? The constituency of the Chief Minister, Yogi Adityanath. Well, it has been a day of road shows right here in Gorakhpur for the BJP's Chief Ministerial face as well as the local candidate from here, Yogi Adityanath, who carried out a road show in Gorakhpur, which is the cultural capital, the religious capital in Purvanchal. You also had Akhilesh Yadav carrying out his road show yesterday. Massive crowds in both these road shows. And there is a third challenger for this Gorakhpur seat, and that is Chandrasekhar Azad of the Azad Samaj Party. He has challenged Yogi Adityanath. I don't know how much difference he'll make, but he has challenged. So all these road shows happening on the ground. Before we move any further, let's quickly take a look at this ground report when Yogi Adityanath took out his road show, big road show in the heart of Gorakhpur city, from where he is contesting. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ का रोड शो अब शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ, आप उनको कैमरे में भी देख सकते हैं। तो ये उनका रोड शो है गढ़ बचाने के लिए और गढ़ को मजबूती से अपने पास रखे रहने के लिए ये योगी आदित्यनाथ का रोड शो गोरखपुर, और न केवल गोरखपुर सदर और गोरखपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों और यहां से पूर्वांचल की राजनीति को तेजी से समझने और पूरा करने का और वहां पर विजयी होने का ये रोड शो एक प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो पूरी तरीके से पूर्वांचल में, जिस तरीके से पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी में हो गया था 2017 में, इस बार भी उम्मीद यही जता रही है बीजेपी कि इन रोड शोज के माध्यम से वो अपना गढ़ पूरी तरीके से बचा सके। क्या ऐसा होगा? क्या योगी आदित्यनाथ अपना गढ़ उसी मजबूती से बचा सकते हैं? क्या पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी तरीके से खड़ा है जैसे 2017 में था? और इस बार क्या जो मुख्यमंत्री का चेहरा है योगी आदित्यनाथ, क्या वो इसकी अगुवाई उतनी ही मजबूती से कर सकते हैं? सिर्फ जीत, पूर्वांचल में सिर्फ जीत भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं हो सकता। मजबूत जीत, बहुत ही कन्विंसिंग जीत, मेरे ख्याल से इस पर पूरा जोर इस रोड शो में दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो में पूरी तरीके से ताकत झोंके हुए। So let's now talk about why is Gorakhpur important. Well, here are a few factors. There's a battle of Gorakhpur where there is a key yogi factor. After frenzied speculations where the yogi will go to Ayodhya, will go to Mathura, Yogi Adityanath decided to contest from his home turf in Gorakhpur. Now the BJP is seeking to consolidate its position in eastern Uttar Pradesh by fielding Yogi Adityanath. Do remember that winning Gorakhpur, and that too a personality like Yogi Adityanath being here, is going to exert its influence in large parts of Purvanchal as well. It's not just him. There is undoubtedly a cult of Yogi which the BJP is trying to exploit here, but on the other side you've got a widow's tears. Why do we say this? Thakur Yogi versus the Samajwadi Party's Brahmin challenger Shubhavati Shukla happening in Gorakhpur. Shubhavati Shukla is very interestingly the wife of former late BJP leader Upendra Shukla, prominent Brahmin BJP leader from Gorakhpur. His wife now with the Samajwadi Party. Sizable number of Brahmin votes, which you will learn in the next presentation in just a short moment. So the SP's calculation is that while they get their claimed dedicated 60,000 plus votes, and if they manage to get in another 50,000 of the Brahmins
with the help of this Brahmin face, then things could change. Could reduce the margin maybe of the victory of Yogi Adityanath or make him lose. At least that's the strategy. Whether that will happen or not, one does not know. The BJP, remember, had a shock defeat in 2018 Lok Sabha by-polls after Yogi Adityanath became Chief Minister. It's not like BJP has not lost this fortress. They have. Praveen Nishad defeated the BJP's candidate in this very fortress. So, to anyone who feels that this is invincible, it cannot be breached, that's not true. It has happened in recent history. Can the BJP, the big question, save its Gorakhpur fortress? Well, the answer lies on this Gorakhpur Sadar chessboard. The constituency chessboard of how many people are there and where does the electorate go? 4.5 lakh voters. There are 75,000, and these are rough estimates, so errors and omission expected. Brahmins 75,000, Vaishya community 57,000, Kayasth 55,000, Muslims 52,000, Yadav 40,000, Thakurs 50,000, SC 55,000, Pasi 38,000 and Nishad 27,000. The Samajwadi Party feels that last time around there was a 60% polling that took place here. If the polling continues to follow the same format, then between a dedicated Samajwadi Party vote along with the Brahmins, their candidate might just sail through. The Azad Samaj Party candidate feels that he would be able to convince the 55,000 SCs, 38,000 Pasis and 27,000 Nishads to vote in his favour. And then of course the Bharatiya Janata Party hopes that the cult of Yogi Adityanath is going to rise above all of these and be successful. Why are we discussing castes? Because in eastern UP, in Purvanchal, it's very little of Hindu-Muslim that works here than the caste arithmetic. So who has that caste arithmetic right is going to decide who exerts influence, not just in Gorakhpur, this seat, but also in the 6th phase in Purvanchal. So what we did was, earlier in the day, we went to the very citadel, the most important religious place here in Gorakhpur, called the Goraksh Dham. The head priest of Goraksh Dham is none other than the Chief Minister himself. Let's take a look at this report. So now in the 6th phase, the battle comes right here. This is the Gorakshnath Peeth in Gorakhpur, and the head priest or the Peethadhish is the Chief Minister himself, Yogi Adityanath. Can he save his fortress? He is, of course, the Peethadhish right here. But politically, this region of Purvanchal now becomes extremely critical. Number of factors at play. But can the pull of a Yogi Adityanath pull the BJP through in the Purvanchal region is the big question. We'll spend a whole day in Gorakhpur to find out. मंदिर और उसकी मान्यता क्या है, आइए बात करते हैं महंत कमलनाथ जी से। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इतिहास के बारे में बता दें, इस मंदिर की मान्यता के बारे में बता दें। गोरखनाथ जी ज्वाला जी मंदिर था ना, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, हाँ। वहाँ आए थे। तो वहाँ भिक्षा मांगने के गए गोरखनाथ जी, तो तामसी भोजन बनता था ज्वाला जी में। तो गोरखनाथ जी बोला हम तामसी भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा मांग के भोजन करेंगे। आप चूल्हा चेतन करिए, हम जा रहे भिक्षा मांगने थे। वो गर्म, अभी चूल्हा गर्म है, खौल रहा है पानी, अभी हाथ दौड़ ठंडा है वहाँ हिमाचल प्रदेश में है। तो भिक्षा खप्पर लेकर आया था, खप्पर लेकर आया वो, उसमें तो खप्पर डालते गया भरा नहीं। तो गोरखनाथ जी बोला चलो भिक्षा, फिर पात्र ऐसे खप्पर रहता है ना, उसी में चावल डालते गए, वो चावल ख़त्म नहीं है। फिर उसी दिन से गोरखनाथ जी का खिचड़ी चलते गया। पहले राजा चढ़ाता था, नेपाल का राजा पहले चढ़ाता था, अब तो उसके नाम से चढ़ता है, अब तो राजा तो नहीं है, उसके नाम से चढ़ता है। उसी से जनता ने चढ़ाते गया और गोरखनाथ जी नाम पे गोरखपुर बसा हुआ है, इसी के नाम से गोरखपुर। नेपाल भी गोरखा राज है, गोरखनाथ के नाम चलता है। वहाँ भी तपस्या किए थे गोरखनाथ जी, वहाँ भी गए थे। यहाँ भीम भी आए थे, भीम युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, निमंत्रण देने आए थे। गोरखनाथ तपस्या में बैठे थे। गोरखनाथ जी भीम बोला हम थोड़ा तपस्या बैठ जाए, आराम विश्राम करें। वो भीम तालाब बना है, उसी नाम से भीम तालाब बना है। Okay, so now let's talk about the challengers in Gorakhpur. We first interviewed Chandrasekhar Azad. Yes, the famed Chandrasekhar who we saw in Western UP decided to challenge Yogi Adityanath directly. How serious a player is he against Yogi Adityanath?
Let's find out his assessment. तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उनको चुनौती देने वाले चंद्रशेखर आजाद जी अब हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, कैसा मुकाबला चल रहा है आपका यहाँ से? देखिए, लोकतंत्र है, तय तो जनता को करना है। और उत्तर प्रदेश में जो 5 साल जंगल राज रहा है उससे जनता पीड़ित है। सरकार में बैठे लोगों को जनता की तकलीफ दिखाई नहीं देती, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे रोजगार मांगने पे नौजवानों की पड़ी लाठियां हो, चाहे कोरोना काल हो। तो आम जनता जो दुखी है वो परिवर्तन चाहती है। और इस परिवर्तन के दौर में गोरखपुर से भी हवाएं जो हैं वो परिवर्तन की तरफ बह रही। हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ काम किए हैं, हर बूथ पे गए हैं। जनता बदलाव चाहती है और वो एक ऐसी वॉइस चाहती है जो आदमी सरकार के सामने लड़ सके। क्योंकि यहाँ पूरे गोरखपुर में 15 लोगों पर रासुका लगी है। अब अगर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था का बखान करते हैं तो रासुका किन लोगों पे लगी? कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या वो लोग हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाएं? यहाँ लोगों की जमीनें दबा ली गई हैं, किसानों की जो जबरदस्ती उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है। यहाँ 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है, नालियाँ नहीं है, सीवर जो है वो ऊपर उठा के बना दिए हैं कि मतलब 1.5 फुट ऊपर। तो जनता परेशान है, बोले तो मुकदमा लग जाता है। फिर सरकारी तंत्र जो है उसको अपने कब्जे में किया गया। जैसे यहाँ एसएसपी बीजेपी एमपी के जो है दामाद है, हम कहे चुनाव आयोग से हटा दो, नहीं हटाएं। और कई और लोग कल पीसी करके बताएंगे, सारे अधिकारी जो ना भ्रष्टाचारी अधिकारी बिठाए हुए मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ सोर्स करके कि उनको चुनाव में लाभ पहुंचा दें। तो धन बल की राजनीति, हमें सब रिपोर्ट है कि किस तरह से यहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, देखिए, आपका ये मानना है कि जनता से ये सब छुपा नहीं है, जो आपका विश्लेषण है, लेकिन जनता में इस कदर का रोष हो कि वो आपको चुने, ये इसको लेकर के आप आश्वस्त क्यों? देखिए, हम जनता के बीच में गए और यहाँ जो लोग दिए हैं ना, बाकी सब सेकुलर पार्टियां हैं और वो चाहती हैं बीजेपी हारे। और उन्होंने वो 5 साल कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ वो अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है, तानाशाह है, सब चीज़ें। फिर जब हम इस सीट पे घोषणा कर देंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े, फिर भी वो प्रत्याशी दिए। तो हमने उन सबका धन्यवाद किया कि चलिए भाई आइए, सब लोग मैदान में आकर लड़ते हैं। लेकिन जनता जो है ना वो देख रही है कि कौन आदमी हरा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस देश में व्यापक व्यवस्था के अनुसार एक गरीब का बेटा अगर लड़ने आएगा तो वो पब्लिसिटी के लिए आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर वो बनारस लड़ने के लिए आएंगे तो वो जीतने के लिए आएंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आएंगे। अगर राहुल गांधी जी जाएंगे केरल लड़ने तो वो जीतने के लिए जाएंगे। मैं समझता हूँ ना, इस झूठ की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो विपक्ष आज विकल्प खुद को मान रहा है, वो बताए पिछले 5 साल में एक आंदोलन किए हो, एक मुकदमा लगे हो किसी पे? कोई गरीबों की, कमजोरों की, नौजवानों की, महिलाओं के हाथरस जैसे मामले कोई एक आदमी जाके लड़ाओ? जो विपक्षी दल के मुख्य अध्यक्ष हैं, आप देख लीजिए, एक का नाम आप बता दीजिए इस पर 2 मुकदमे लगे हों, या 2 आंदोलन बता दिए 5 साल के विपक्ष पे। विपक्ष अगर सही तरीके से अपना काम अदा करता है संकेत जी, तो इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं होता और नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ जो शोषण हुआ वो नहीं होता। विपक्ष अगर अपना असली रोल अदा करता, लेकिन विपक्ष तो बैठ के इंतजार देख रहा था कि चुनाव कब आएगा। Okay, so who's the other challenger to Yogi Adityanath? It is Miss Shubhavati Shukla. She is the widow of a BJP leader, Upendra Shukla. She's a Brahmin face, and from Gorakhpur, the Samajwadi Party's calculation that many Brahmins are in tears, just like Mrs. Shubhavati. She started crying when she spoke to NDTV's Saurabh Shukla. शुभावती शुक्ला जी पत्नी हैं उपेंद्र दत्त शुक्ला जी की। उपेंद्र दत्त शुक्ला जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे और योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा सीट खाली हुई तो बीजेपी ने उनको यहां से चुनाव लड़ाया था, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद शुभावती जी का उपेंद्र जी के परिवार का साथ नहीं दिया गया, ऐसा इनका कहना है। शुभावती जी को टिकट दिया है योगी जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, इनके परिवार ने फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और वे मैदान पे। हम शुभावती जी से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या वजह रही कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और समाजवादी पार्टी में आ गए। शुभावती जी, क्यों भावुक हो रही हैं आप? बेटा, मेरे पति का देहांत हो गया। हाँ। 20 महीने गुजर गए, हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया देखने, हमारे बच्चों को नहीं, कोई नहीं आया देखने कि कैसे वो भी बच्चे जी रहे हैं, कहाँ रहे हैं। छोटे छोटे कर करता अपना दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। 20 महीने का दिन गुजर गया। उसके बाद मेरा बच्चा
4 महीने के पहले उसकी हालत खराब हो गई, आंत फट गई। सबसे सब कहा कि मेरा इलाज करा दीजिए। लखनऊ में कहीं भी नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम लोग प्राइवेट ले के उसका इलाज कराए। 14 तारीख को मेरा बेटा गया है जोगी के पास, योगी जी के पास गए कहे कि अच्छा चलिए बैठिए, अभी सोचेंगे। क्या किस लिए गए थे उनके पास? उनके पास गए थे कि हमारे पिताजी के कहीं एक श्रद्धांजलि देने के लिए कहीं स्थापना करा दीजिए। फिर क्या बोले योगी जी? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले जोगी जी। यही कहे कि चलिए देखा जाए। तब लखनऊ गया, दोनों बेटे हमारे लखनऊ भी गए। कहे बोले लोग ये मृतक का ये कहीं नहीं है जगह, मृतक ये पार्टी नहीं है। So the contest of Gorakhpur right here on, as you saw, two very potentially strong challengers to Yogi Adityanath, but can his personality tower over all these challenges in Gorakhpur and by extension in the region of Purvanchal? We're stopping for a short break at this moment, but when we come back, let's pose these questions to the voters who are going to vote on the 3rd of March. What did they have to say? We went to the busiest street in Gorakhpur to find out the answers. तो गोरखपुर के दिल में क्या है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। गृह जनपद है, गृह जिला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरक्षपीठ जो है उसके वो मठाधीश भी हैं। लेकिन इस बुल बनाम बुलडोजर की लड़ाई में, जिसमें उनको एक उपाधि मिली है बुलडोजर वाले बाबा, तो बुलडोजर वाले बाबा क्या अपने विपक्षियों पर भी बुलडोजर चला देंगे, या विपक्ष के लोग जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं उसके रास्ते में बुल रख देंगे, यानी कि सांड की जो लड़ाई हो रही है। गोरखपुर के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल देखा। योगी आदित्यनाथ यहीं के हैं और अब मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं, दावा भी पेश कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? हम लोग इस शहर में योगी जी को सिर्फ और सिर्फ महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में जानते हैं। योगी जी आज बुलडोजर चला रहे हैं, इसके पहले भी योगी जी बुलडोजर चलाते थे। कैसे? इस शहर में रहना है तो योगी योगी कहना इस शहर का नारा हुआ करता था। नौकरी है आपके पास? नहीं, अभी नहीं। अभी हम उस लायक ही नहीं है कि हमको नौकरी कहाँ से मिले। अच्छा, लायक नहीं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद आपको योगी आदित्यनाथ जरूर मिलेगी। हम उस लायक होंगे तो हमको नौकरी मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि निष्पक्षता के आधार पर कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर अगर बात की जाए बिल्कुल वैसे ऐसा नहीं हुआ है। और मतलब कैसा नहीं हुआ है? देख देख करके कार्रवाइयाँ हुई हैं। अच्छा, देख देख करके इस सरकार ने कार्रवाई की है। इससे क्या तात्पर्य? आप बहुत सहम के अपनी बात रख रहे हैं, एकदम कदम फूंक के। क्या हुआ? इसलिए कि बात जो सही है वो कदम फूंक करके ही रखनी पड़ती है। अच्छा, क्यों? अब सरकार है और सरकार में सब कुछ संभव। यहाँ तो आप जानते ही हैं, बुलडोजर चल जाता है। और रही बात कि पहली बार ऐसा प्रदेश में हुआ है कि लोग डर के बात कर रहे हैं। पहले खुल के बात लोग करते थे, इसके पहले भी सरकारें रहती थी, और अब तो केवल फोटो डाल देने से आपको जेल हो जाएगी, घर से उठा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के वजह से 25 साल में जो गोरखपुर की एक अलग पहचान बनी, वो आज तक गोरखपुर की पहचान नहीं बन पाई। इसके पहले सपा, बसपा, कांग्रेस की भी सरकार थी। आज हिंदुत्व
और हिंदू का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश में रह गया। अब फिर से उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे नहीं, हैं। लेकिन जो बात कह रहे हैं उसका आप जवाब दे अगर दें। हमेशा में रहते तो आप चौराहे पे खुले घूमते नहीं मेरे बड़े भैया। ये तो आपकी अपनी यहाँ पर्सनल जो चिंता हो है सकती है। ये पूर्वांचल का गोरखपुर शहर है। यहाँ बहुत से राजनीतिक पृष्ठभूमि के बड़े ऊर्जावान लोग रहते हैं और राजनीति करते हैं। उनकी नर्सरी को खत्म कर दिया गया, उनकी प्रतिभा को मार दिया गया। अपराधियों की नर्सरी को खत्म कर दिया गया। अपराधी ना कि सब ऊर्जावान व्यक्ति बुलडोजर के। सब जनता को इरिटेट कर रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर हमने देखा है एक बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा बना है, सांड एक बेरोजगारी मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बना है। आप शहर में गोरखपुर शहर में आए हैं, बता दीजिए कितने सांड आपसे मिल गए? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए ना। शहर में दिक्कत नहीं है ना महाराज, दिक्कत गाँव में है। मैं जान करता हूँ मेरे भैया। बिहार के आगे चले जाइए, वहाँ देख लीजिए कितनी सारी गायें बैठी हुई हैं। गोलघर की सड़कों पर चलना मुश्किल है, इतने सारे इतनी गायें हैं यहाँ, और आवारा पशुओं से पूरा जिला परेशान अच्छा, है। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, सलीम भाई हमारे साथ यहाँ पर आता हूँ एक सेकंड। सलीम भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबका ये कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग समर्थक हैं या योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा बम्पर विकास जो है वो पहले कभी नहीं हुआ है गोरखपुर में। आप यहाँ बारिश में नाव चलती है, इसी में जल्दी आप जाइए ना। एक सेकंड, सलीम भाई से पूछ लो, उसके बाद आता हूँ। हाँ, आपका विश्लेषण। देखिए, ऐसा है कि 17 की लहर तो नहीं है। अगर गोरखपुर 17 की लहर गोरखपुर में नहीं है। नहीं है। अगर गोरखपुर में 9 सीटें थी, जिसमें से एक सीट चिल्लू पार की बसपा ले गई थी, बाकी 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि एक सीट छोड़ के, गोरखपुर सदर की सीट छोड़ के, बाकी 8 सीटों पे सीधी टक्कर है। अब किसके साथ रिजल्ट क्या होगा? अगर देखिए, अगर विकास का पैमाना बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर है तो योगी जी 100 में 110% सफल। विकास सिर्फ सरकारी नौकरियों से आता है तो योगी जी विकास बुलडोजर से भी आ रहा है क्या? अरे सर, बुलडोजर तो बदमाशों के ऊपर चला है ना। ये विकास ही है, आज ये विकास ही दिखाई दे रहा है। ये बुलडोजर वाला विकास क्या है? बुलडोजर सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों पर और जाति विशेष के लोगों पर, धर्म और जाति विशेष के के लोगों लोगों पर बुलडोजर चलता है। और धनंजय सिंह बुलडोजर कहाँ चला? चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माहौल अब गर्म हो गया है और बातचीत लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि गोरखपुर में ये जो बाबा का बुलडोजर जिससे वो जाने जाते हैं, ये बुलडोजर क्या प्रतिद्वंदियों को रौंदते हुए राजनीतिक रूप से आगे निकलेगा, या इस बुलडोजर में डीजल खत्म हो जाएगा और वो रुक जाएगा। ये चीज 10 मार्च को पता लगेगी।